So the case goes back, dates to 2014 when a case was filed challenging the recruitment process of 10,323 teachers. That includes the teachers in postgraduate, graduate, in different categories. So a petition was filed in the lower court. Later on, the then left front government moved on to the high court. It was challenged, and the then Chief Justice had terminated the jobs. It said that it had found irregularities in the recruitment process, following which their jobs were said to be terminated from 2017. The Supreme Court also upheld the verdict of the High Court, and since March 31st, this 10,323 teachers are jobless. They have continued with lots of movement, and they also tried to speak with the state governments. Several rounds of talks were held between the Chief Minister Biplab Kumar Deb, Education Minister Ratan Lal Nath. I have a few of them here joining me right now. I'll just inform our viewers that it is almost 11 at night. It's cold here. It's almost 11 degree here. People at their home, they're getting this cold. They're trying to get a little bit of warm. But these teachers, they have made a makeshift here. They're here for the 24th day. They are protesting here. We can also see that they have made a Shaheed Bidi here, which is what they called here, in honor of those 70-odd teachers who have already lost their life fighting for justice to get the bread and butter for the family members. I will speak with some of the teachers here. दादा आपका नाम हिंदी पे जो भी बोलते मैडम? मेरा नाम सुमन दास है। क्या हुआ है आप लोग पिछले 24 दिन से यहाँ क्यों बैठे? जो 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने हमको बोला था 2 महीने के अंदर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका जो सोल्यूशन है वो अभी तक नहीं करा। तो ऐसे कितने दिन तक आप लोग यहाँ पे दिन गुजारेंगे? जल्दी तक हमारा प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा हम यहाँ पे डटे रहेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ का कहना है ऑलमोस्ट 9,000 नॉन टीचिंग पोस्ट दिया गया है। आप लोग क्यों प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे, क्यों डर रहे हो आप लोग? एक्चुअली मतलब हमारा तो नौकरी नहीं गया। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है 127 में लिखा है, एकदम जो क्लास 5 में पढ़ता है वो बच्चा भी समझ में आता है उसमें क्या लिखा ही है। उसमें लिखा है जो जज मैंने राय में जजमेंट में लिखा ही है, अभी तक जो हुआ है तो हुआ है। फ्यूचर में ना हो तो अभी जो नौकरी है वो रहेगा। फिर से जो होगा ये पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। पॉलिसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी न्यूली करना चाहिए। तो आप किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराते हो? आज जो सिचुएशन है 10,300 टीचर का जो एक ग्रुप है, इसके लिए रीजन कौन है, जिम्मेदार कौन है? सिक्का दफ्तर एजुकेशन डिपार्टमेंट फुल्ली से इसका दायभार लेना पड़ेगा। अभी देखा जा रहा है आप लोग अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को भी लाके यहाँ पे ठंड में बिठा रहे हो, ऐसा क्यों? क्या करूँ, आज 9 महीने से हमारा कोई वेतन नहीं है, क्या करूँ? किससे पूछूं? सरकार से तो पूछना है, तो हमको इंसाफ चाहिए। तो सरकार तो कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए हम रास्ते में हैं। चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जिस दिन मैंने जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हम रास्ते में ही रहेंगे। मार्च 31 के पहले आप कहाँ पे टीचर थे और कहाँ पे कितने साल पढ़ाया आपने? 10 साल पढ़ाया। कौन से स्कूल में? हमारा पूछते हैं अम्बासा में। अम्बासा में। आप रहने वाले हो कहाँ पे? अगरतला से। So we heard one among the teachers who have served almost 10 years. That is what I was trying to say. Since 2010 in various sections, teachers were recruited. The figure which was said to be around 10,323 teachers. They are jobless now. They are struggling to earn the bread and butter for the family members. Now I will try to go there and show you how they're spending their night here amidst this cold weather. This is the Joint Movement Committee. Let me tell our viewers that Joint Movement Committee comprises of 3 organizations. In between these several years of fight for justice, the teachers were separated into 4 to 5 groups, out of which 3 groups finally decided that they will come on in a single dais to fight for their struggle. Although a single group is still
not fighting against the government, although they are saying that the government has proposed 9,000 posts and they should try to get the recruitment by sitting in the exams. However, the teachers here, they have been saying that they will not sit in the exam because they never lost their job and they deserve to get recruitment in the government departments without sitting in the open seat examinations. Here are some of the teachers. Among them, this is Dalia Dash. She is leading the fight for the 10,300 teachers for several years. I will speak with her. Madam, আপনাদের এই ফাইটটা হিন্দিতে যদি বলুন 24 दिन से मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे लिखा है 24 दिन से आप लोग यहाँ पे ठंड में बैठे क्यों कर रहे हैं आप लोग 24 दिन से ऐसा प्रोटेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्यों नहीं बैठ रहे आप लोग? ऐसा है कि हम लोग 10 साल से हम लोगों ने नौकरी किया टीचिंग, हम लोग टीचर थे, क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट पिछले जो गवर्नमेंट थे त्रिपुरा सरकार जो थे वो लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया, रिक्रूटमेंट का जो पॉलिसी था उन लोगों ने किया, एडवर्टाइजमेंट किया, हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट्स था जो क्राइटेरिया था हम लोगों ने जमा किया, फिर इंटरव्यू कॉल किया, हम लोगों ने इंटरव्यू दिया, फिर हम लोगों को रिक्रूट किया। उस हिसाब से हम लोग 10 साल से नौकरी कर रहे थे टीचर के। फिर 10 साल के बाद कब कैसे नौकरी चला गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोग नींद में थे लेकिन हम लोगों का नौकरी चला गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोगों को बोलने का कोई मौका भी नहीं दिया कि कैसे हम लोगों का जो नौकरी है वो चला गया, क्यों चला गया, हम लोगों का बोलने का मौका नहीं दिया। अब तक हम लोगों को टर्मिनेशन लेटर भी नहीं मिला। तो फिर तो हम लोग नींद में थे, सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। फिर अभी पिछले साल जो सरकार थे वो लोगों ने किया, फिर उन लोगों ने एक ट्राई भी किया गवर्नमेंट के से जो नॉन टीचिंग पोस्ट था 12,000 नॉन टीचिंग पोस्ट था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, दूसरे था सोशल डिपार्टमेंट में 1,000 का, टोटल 13,000 का किया। उसमें जो जैसे कि टीचर का जो अगर हम लोग टीचर में नहीं रह सकते तो पिछले सरकार ने 13,000 जो पोस्ट किया शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें क्राइटेरिया था कि हम लोगों को मौका मिला, जैसे कि 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस बोला, जैसे कि हम लोग उधर नौकरी पा सकते थे, इसलिए क्राइटेरिया रखा हमारे लिए। फिर हम लोगों ने उधर भी इंटरव्यू दिया, फिर वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, किसी ने इंटेंशनली किया, जो भी कर सकते थे कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने हम लोगों को बार बार प्रॉमिस किया, हम लोग तो 10,323 जो टीचर है ना उन लोगों को हम लोग स्थायी समाधान करेंगे, परमानेंट सोल्यूशन करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। फिर अब जो है ना 2 महीने पहले जो अक्टूबर में हमारे जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है तो उन्होंने हम 3 संगठन का जो 6 प्रतिनिधि हैं उन लोगों को बुलाया, हमको प्रॉमिस किया कि 1-2 महीने के अंदर हम लोगों का कुछ भी परमानेंट सोल्यूशन कर लेंगे। लेकिन तीसरा 2 दिसंबर है वो 2 महीने हो गया, हम लोग चुप रहे। 17 महीने हम लोग चुप रहे, हम लोग कुछ नहीं आंदोलन नहीं किया, हम लोग सरकार के ऊपर डिपेंड किया, भरोसा किया, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। फिर हम लोग मतलब क्या बोलते हैं जो कोई उपाय नहीं है, फिर हम लोगों ने ये जो हमारे नौकरी के लिए हम लोग गण अवस्थान 7 दिसंबर से किया, तो आज 24 दिन चल रहे हैं। 24 दिन के अंदर भी कोई भी नहीं हम लोगों का खबर भी नहीं लिया, जैसे कि इधर छोटा छोटा बच्चे भी है जो शिक्षिका है उनके साथ हम लोग इतने ठंड में, मच्छर है, ड्रेन के जो बदबू है, फिर आप लोगों को पता है एनवायरनमेंट क्या है, उसमें हम लोग आज 24 दिन से रह रहे हैं। As we walk out from here, we can see on December 23rd last, the Chief Justice of India had visited to Agartala. So following that, they had made some placards which reads, "Honorable Chief Justice of India, we are innocent, save us." So a series of protest demands, deputation have been placed by these teachers to the Education Department, to the Chief Minister, but so far nothing concrete has come out. Just 2 days left for the new year 2021. The 2022 will come, but this 2020 has been really harsh and a hard time for not only for these teachers but people across the world fighting the COVID-19 pandemic.
but somewhere deep down inside they feel that 2021 will get something for them, to get a smile on their face, to get a little food for their baby. They're starving hunger for last 9 months in their home. We were speaking with those teachers here from Agartala City Center. This is Chandan Pandey reporting from Agartala. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.